إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص صحیح سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کی آج 14 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کے مہینے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا ہے، نبی کی سنت کیا رہی ہے، پھر شب برات 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگ موجودہ دور میں کیا کر رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں
واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن کریم میں جیسا کہ آیت میں نے پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے کسی خاص دن میں کر لینا، یا کسی خاص مہینے میں کر لینا، یا کسی خاص ہفتے میں کر لینا، یا کسی سال کو خاص کر کے اس سال عبادت کر لینا، اتنا ہی کافی ہے، ایسا ہی کرنا ہے، شریعت میں اسی طرح کا حکم ہے، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عبادت کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی مہینے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، اور کسی سال کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے۔ 5 وقت آپ کو نماز پڑھنی ہے روزانہ، یہ عبادت ہے۔ رمضان کے جو روزے آتے ہیں، رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ، وہ 1 مہینے کا روزہ آپ کو مسلسل رکھنا ہے۔ حج کا موسم آیا، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو حج کر لینا ہے۔ زکوٰۃ آپ پر اگر واجب ہو رہی ہے تو جس وقت واجب ہو رہی ہے، جس دن، جس تاریخ، جس مہینے میں، اسی وقت نکال کر غریبوں مسکینوں میں اس کو بانٹ دینا ہے۔ یہ طریقہ شریعت اسلامیہ نے بتلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص دن ہم عبادت کر لیں پھر زندگی بھر سوتے رہیں، کسی خاص رات کو ہم عبادت کر لیں اس کے بعد زندگی بھر ہم سوتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے موجودہ دور میں کچھ ایسا ہی کر لیا ہے، جیسے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ آئے گی، آج 14 تاریخ ہے، تو آج ہی کی رات میں کیا ہے 15 تاریخ ہوگی شعبان کی، تو اس کے تعلق سے لوگ کیا ہیں رات میں عبادت کرتے ہیں، اگلے دن ہو کر روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارا کچھ اس میں انجام دیتے ہیں جو نبی پاک ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا میں۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت جو پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ عبادت زندگی بھر کرنا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے، ان کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور موت تک، حتی یاتیک الیقین کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ موت آئے اس وقت تک تم عبادت کرتے رہو، ایسا نہیں کہ لمحے میں عبادت کر لیے، 1 دن کر لیے، 1 رات کر لیے، چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ تو شعبان کے مہینے کی فضیلت کی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت کو جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، کیا فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، یعنی سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو ہر حال میں رکھنا ہے، ان کے علاوہ نفلی روزوں میں سے شعبان کے مہینے میں جتنے روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اتنے روزہ میں نے کسی اور مہینے میں نبی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں۔ یہ عائشہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے۔ تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ پھر حدیث کا آخری ٹکڑا ہے
तकरीबन पूरा महीना रोजा रख लेते थे या कुछ छोड़ देते थे, आखिर में जाकर दो चार एक छोड़ देते थे। काना यसूमुहु इल्ला कलीला, अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे मगर पूरा महीना रोजा रखते थे मगर आखिर में कुछ छोड़ देते थे, और फिर ऐसा कहते हैं बल्कि पूरा महीना ही कभी रख लेते थे, ऐसा मामला था। ये शाबान के महीने के ताल्लुक से, वॉल्यूम थोड़ा बड़ा, शाबान के महीने के ताल्लुक से ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत कि पूरा महीना शाबान आप रोजे से रहते थे तकरीबन, या आखिर में जाकर कुछ एक आध रोजे या दो तीन रोजे इस तरह के छोड़ देते थे। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत इस महीने में। सुनते जाइए आगे, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। क्यों रखते थे ये रोजा, इसकी हिकमत क्या है कि शाबान के महीने में इतनी कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा क्यों रखते थे? आइए इसकी हिकमत हम जानते हैं। हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जितने रोजे मैंने शाबान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखते हुए देखा, किसी और महीने में रखते हुए नहीं देखा, तो आपसे बाकायदा तौर पर यह पूछा गया, इस्तिफ्सार किया गया कि आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है कि आप शाबान के महीने में इतने रोजे क्यों रखते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ज़ाका शहरुन तग़फलुन नासु फीहि अन्हु व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ये वो महीना है जिसमें रजब और रमजान के बीच में, ये इससे पहले वाला महीना रजब का था, ये शाबान चल रहा है, इसके बाद रमजान का महीना आ रहा है, तो रजब और रमजान के महीने के बीच में जो ये शाबान का महीना है, इसमें इस महीने के ताल्लुक से लोग गाफिल हैं, गफलत में है लोग। ये एक ऐसा महीना है कि इस महीने से लोग गाफिल है, गफलत में है। ये एक ऐसा महीना है, वहुवा शहरुन, ये एक ऐसा महीना है, तुरफ़अु फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन, बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश किए जाते हैं इस महीने में। बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस महीने में पेश किए जाते हैं। व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, और मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश हो तो मैं हालत रोज़ा से हूँ, रोज़े के हालत में रहूँ। इमाम निसाई ने इस हदीस की रवायत किया है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। मालूम हो गया कि इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन पूरा महीना रोज़ा क्यों रखते थे कि इस महीने में बंदों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश किए जाते हैं। नबी की ख्वाहिश थी कि मेरा अमल दरबार इलाही में पहुँचे तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। ये कैफियत पहुँचे नबी रब्बुल आलमीन के पास। ये हिकमत है इस महीने में रोज़ा रखने। क्या मालूम हुआ कि तकरीबन पूरा महीना अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे, उसकी हिकमत ये थी। अब आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस महीने में इतनी कसरत से रोज़ा रखते हैं और इसकी हिकमत जो बता रहे हैं, लेकिन उम्मत को क्या बतलाया है, उम्मत को क्या तालीम दी है। तिरमिज़ी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फला तसूमु, शाबान महीने का जब आधा महीना गुजर जाए और आधा बाकी रह जाए, आधा महीना जब बाकी रह जाए तो अब तुम इसके बाद रोजा मत रखो, फला तसूमु। उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आधा शाबान गुजरने के बाद अब आगे रोजा नहीं रखना है। उम्मत को मना किया। नबी खुद रख रहे हैं पूरा महीना तकरीबन, लेकिन उम्मत को मना किया। क्या मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरा महीना रोजा रखना जायज था, लेकिन उम्मत को जब मना कर दिया गया तो अब 15वीं शाबान के बाद किसी भी फर्द के लिए रोजा रखना, नफली रोजा जायज नहीं है। हाँ, मगर दूसरी हदीस में बयान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मगर, इस हदीस में नहीं, दूसरी हदीस में बयान किया है, उसका मफहूम मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें बतलाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मगर कोई आदमी नफली रोजा अगर कंटिन्यू पहले से रखता आ रहा है, जैसे एक रोजा है
दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा, उनकी सुन्नत, उनका तरीका ये था, और बेहतर तरीका बतलाया गया है हदीस में, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे, एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन इफ्तार करते थे। ये नफली रोजा की बात हो रही है। तो ये रोजा कोई अगर रख रहा है जिंदगी में, तो शाबान के दूसरे महीने में भी रखता है, शाबान में भी वो रखेगा, तो 15 के बाद भी वो रख सकता है। 15 के बाद भी एक दिन रखे, एक दिन छोड़े, एक दिन रखे, एक दिन छोड़े, रख सकता है। या इसी तरह से अय्याम 20 के रोजे हैं, यानी हर महीने के 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख का रोजा है सुन्नत। बल्कि वसीयत भी की अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू हुरैरा को, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी फजीलत है। उस रोजे को कोई रखता है तो 15वीं तक उसका खत्म। उसके बाद हफ्तावारी रोजा अल्लाह के रसूल ने बतलाया है, जो अल्लाह के रसूल खुद भी रखा करते थे, कि हर सोमवार को और हर जुमेरात को अल्लाह के रसूल रोजा रखा करते थे। हर सोमवार को और हर जुमेरात को रोजा रखते थे। तो 15वीं शाबान के बाद भी ये सोमवार और जुमेरात का दिन आएगा। तो जो आदमी पहले से इन रोजों का एहतमाम करता है, तो 15वीं शाबान के बाद वो इन रोजों को रखेगा, उसके लिए कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो इसका एहतमाम नहीं करता है और शाबान के महीने को मद्देनजर रखते हुए कि इसमें रखने का है बच्चे समझ रहा हूं, इसमें रखने का है, इसमें हम क्या है 15वीं तारीख को रख लेंगे, या पूरा, या इस तरह से क्या है 15वीं के बाद हम पूरा महीना रोजा रख लेंगे, तो उनके लिए नबी ने क्या है मना किया है, फला तसूमू। जब क्या है रमजान शाबान का महीना आधा गुजर जाए तो उसके बाद तुम रोजा ना रखो। अब उन उम्मत के लिए सुन्नत ये ठहरी, कोई फर्द अगर रोजा शाबान के महीने में अगर रखना चाहता है तो शाबान की पहली तारीख से लेकर 15वीं तारीख तक वो कंटिन्यू रोजा रखे। उनका मकाम है, उनका मर्तबा है, उनकी फजीलत है कि वो रोजा की हालत में उनके अमाल दरबार इलाही में पेश होंगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेहतर तरीका है, अच्छी बात है ये सुन्नत। ऐसा कर सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर आप 15वीं तारीख तक कंटिन्यू रखिए रोजा, जो नबी की सुन्नत है। नबी तो पूरा महीना रखते थे, लेकिन उम्मत को बतलाया कि आधा तक आप रख सकते हैं, उसके बाद नहीं रख सकते हैं। या कोई अगर ये नहीं रखता है, 1 तारीख से 15 तारीख तक क्या है उसकी ताकत नहीं है, नफली है, ताकत नहीं है, वो नहीं रखना चाहता है, तो 13वीं, 14वीं, 15वीं को रखे। जो हर महीना जो इंसान रखता है तो हर महीना जो रख रहा है वो रखेगा, ना कि शाबान के महीने में सिर्फ आके रखेगा 15वीं तारीख को, ऐसा नहीं। ये मैंने सुन्नत रसूल बतलाया, तरीकाए रसूल बतलाया कि शाबान के महीने में क्या करना चाहिए, नबी क्या करते थे, ये करने का है। रोजे के ताल्लुक से शाबान की ये फजीलत आपको बतलाई गई। अब आइए उसके बाद शाबान के महीने में क्या है, 15वीं तारीख की क्या फजीलत, 15वीं तारीख की क्या फजीलत है। शाबान के महीने की 15वीं तारीख, इसके ताल्लुक से जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया कि खुसूसी तौर पर 15वीं तारीख के ताल्लुक से क्या है आपको फजीलत नजर नहीं आएगी। 15वीं खुसूसी आप कर लेंगे, जैसा कि बाज लोगों ने आज के ज़माने में क्या है, बल्कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका शाबान के महीने में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बिदअत के रूप में ईजाद कर ली है। अभी आएगा जिक्र इंशाअल्लाह ताला। तो 15वीं तारीख को खुसूसी तौर पर क्या है कोई रोज़ा रखता है तो ये दुरुस्त नहीं है। खुसूसी तौर पर 15वीं को सिर्फ रखता है तो ऐसा उनके लिए करना दुरुस्त नहीं है। 15वीं तारीख को खुसूसी तौर पर क्या है वो जश्न मनाता है वगैरह बहुत कुछ अंजाम देता है, ऐसा करना उनके लिए दुरुस्त नहीं है, ये शरीयत के खिलाफ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। तो शाबान के 15वीं तारीख की फजीलत के ताल्लुक से आइए एक हदीस आपको मैं बतलाऊं जो सही है। सही हदीस है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्किही लैलतन निस्फ मिन शाबान फयगफिरु लिजमीइ खल्किही इल्ला लिमुशरिकिन औ मसाहिनिन, रवाहु इब्न हिब्बान। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सिलसिला सहीह में जिक्र किया है, यानी हदीस ये सही है। हदीस का तर्जमा ये है कि शाबान की 15वीं तारीख को, शाबान की 15वीं तारीख में रात में, 15वीं तारीख यानी रात 15वीं तारीख में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी मखलूकात की तरफ झांक कर देखता है नजर रहमत से, रहमत की नजर से पूरी मखलूकात की तरफ देखता है अल्लाह ताला। कब? शाबान की 15वीं तारीख में रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है पूरी मखलूकात की तरफ नजर रहमत से देखता है। नजर रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है और देखने के बाद करता क्या है, फयगफिरु लिजमीइ खल्किही,
पूरी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, बख्श देता है उनके गुनाहों को, इल्ला लिमुशरिकिन औ मसाहिनिन, मगर जो आदमी मुशरिक है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शाता है, उसको माफ नहीं करता है। और जो आदमी अपने दिल में कीन्हा रखा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, उस आदमी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता है। दो वर्ड अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल किया है, इल्ला लिमुशरिक औ मसाहिन। मुशरिक जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर रहमत से क्या है, देख जरूर रहा है, पूरी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर रहा है, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करता है। दूसरी हदीस में बतलाया उसको ढील देता है कि हो सकता है आगे जाकर इस्लाम कबूल कर ले, जब इस्लाम कबूल करेगा उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ फरमाएगा या क्या करेगा। इसी तरह से क्या है, जिनके दिल में कीन्हा है कि मुसलमान के ताल्लुक से, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता है। यहां तक कि दूसरी हदीस में फिर बतलाया, यहां तक कि वो अपने उस कीन्हा को, जो किसी भी मुसलमान के ताल्लुक से अपने दिल में कीन्हा रखा हुआ है, उसको साफ कर ले, उसको मिटा दे, वहां तक ढील देता है। जब तक कीन्हा को नहीं मिटाता तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नहीं माफ करता है, उनको नहीं बख्शाता है। तो शाबान की 15वीं तारीख की फजीलत तो है, इस हदीस में बतलाया गया कि फजीलत है कि नजर रहमत से अल्लाह पूरी मखलूकात को देखता है, मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, सिवाय मुशरिक और कीन्हा रखने वाले आदमी को, इनको क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता है। बाकी सारे मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। ये फजीलत तो है जरूर। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि 15वीं शाबान की फजीलत है। लेकिन अब सुनिए, 15वीं शाबान की फजीलत यही तक है, लेकिन क्या 15वीं शाबान में इस हदीस को नबी ने जो बयान किया, इनकी फजीलत को बतलाया, इसके बावजूद 15वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात जाग कर कोई खुसूसी इबादत की है? नहीं। खुसूसी नमाजें पढ़ी हैं? नहीं। 15वीं के बाद 16वीं तारीख को जागने के बाद खुसूसी रोजा रखा है? नहीं। जवाब आएगा नहीं। तो अब 15वीं तारीख को जो लोग क्या है खुसूसी तौर पर इबादत करते हैं, कोई इसका जवाज हदीस में नहीं है, बल्कि ये बिदअत पर मबनी है। 15वीं के बाद 16वीं तारीख को जो खुसूसी तौर पर रोजा रखने के इत्माम करते हैं, कोई इसका जवाज नहीं है, ये बिदअत पर मबनी है। चूंकि लोगों ने ये अपनी तरफ से अब दाखिल किया है, नबी से इसका सबूत नहीं मिलता है। और लोगों में, अहले हदीसों में भी क्या है, ये चर्चा है, खासतौर पर औरतों में, कि शब बरात, और आज छुट्टी भी है। ये शब बरात ही के लिए आज जितने सरकारी दफातर हैं, स्कूल हैं, सब छुट्टी हैं, क्योंकि उनका गलबा है अहले बिदअत का। वो जाकर छुट्टी एंट्री करा लेते हैं। जब छुट्टियों की लिस्ट बनती है कि हमारा वो त्यौहार है, आज के दिन वो त्यौहार मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, रात जागेंगे, कब्रस्तान जाएंगे, चरागाह करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, ये सब कुछ उनका होगा आज। और हलवा पूरी भी खाएंगे और बनाएंगे, और कल होकर क्या है, 16 तारीख को रोजा भी रखेंगे। रोजा तो बहुत कम ही रखते होंगे, लेकिन तमाशा करने वाले ज्यादा हैं। इबादत करने वाले तो कम और तमाशा करने वाले ज्यादा। कहा अल्लाह के रसूल ने कि शिर्क करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में नहीं बख्शाता है। और आज 15वीं तारीख को ये अहले बिदअत सिर्फ बिदअत तक क्या है महदूद नहीं रखते, बल्कि शिर्क के बहुत सारे काम भी अंजाम देते हैं, शिर्क के बहुत सारे काम को अंजाम देते हैं। तो मुख्तसरन मैंने आपको बतलाया। अब शाबान की 15वीं तारीख के ताल्लुक से जो लोगों में मनगढ़ंत हदीसें हैं, जिनकी बुनियाद पर वो लोग ऐसा करते हैं, आइए सुनते हैं उनको। एक हदीस है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक हदीस है जिसमें बतलाया गया है कि शहरो शाबान, यानी शाबान का जो महीना है, वो निस्बत क्या है अल्लाह के रसूल ने कि शाबान का महीना मेरा महीना है और रमजान का महीना अल्लाह का महीना है। इस तरह की हदीस में क्या है, इस हदीस को इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ करार दिया है, बल्कि मौजू करार दिया है। मौजू के माने होते हैं घर लेना अपनी तरफ से। नबी ने नहीं कहा, साहबा के नहीं,
नबी का अमल नहीं, कौल नहीं, फेल नहीं, कुछ नहीं, लोगों ने अपनी तरफ से घर के पेश कर दिया, शरीयत में दाखिल कर दिया लोगों को गुमराह करने के लिए। ऐसी हदीस को मन घड़त मौजू कहते हैं। ये वही है, ये हदीस मन घड़त है। इसी तरह से एक और हदीस हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं तारीख को 15वीं तारीख को अल्लाह के रसूल ने रात में खुसूसी नमाजें पढ़ी। 14 रकात या कितने का जिक्र है, खुसूसी नमाजें आपने पढ़ी। और उसके बाद कई सूरतों की आपने तिलावत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है बतलाया कि जो ऐसा करेगा शाबान की 15वीं तारीख में रात में कि खुसूसी इबादत कर लेगा, इतनी रकातें नमाजें क्या है 14 या कितनी रकातें हैं वो पढ़ेगा, और फिर कई सूरतें की क्या है इबादत करेगा, तिलावत करेगा, जो ऐसा कर लेगा तो 20 मकबूल हज का सवाब उनको मिलेगा। कितने? 20 मकबूल हज। हज जिसका कबूल हो चुका है उसको मकबूल हज कहते हैं। 20 हज का सवाब और 20 साल के रोजे का सवाब उनको मिलेगा। यह हदीस हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। इस हदीस के ताल्लुक से अल्लामा इब्न जौजी अपनी किताब अल मौज़ूआत में लिखते हैं कि यह हदीस मौजू है, मन घड़त है। जमा किया है उन्होंने अपनी इस किताब में, सिर्फ मौजू हदीसों को जमा किया है, सिर्फ मन घड़त हदीसों को। इस किताब में इब्नुल जौजी ने क्या है इस हदीस को रखा है। मालूम ये हुआ कि ये हदीस जो अली की तरफ से क्या है मनकूल है और नबी की तरफ जो निस्बत की गई है ये घड़ी हुई हदीस है, नबी से ऐसा इसका सबूत नहीं मिलता है। आइए एक तीसरी हदीस देखते हैं इसके ताल्लुक से, जिनकी बुनियाद पर लोग क्या है ऐसा करते हैं। तीसरी हदीस हजरत अली ही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो शख्स इस रात को 15वीं शाबान की रात को 100 रकात नमाज पढ़ेगा और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 10-10 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर जरूरत को पूरी करेगा जो भी मांगेगा। और लौहे महफूज में अगर वो बदबख्त लिखा गया है तो खुश नसीब लिख दिया जाएगा और आइंदा 1 साल तक के लिए उनका कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी करता रहे। यह हदीस अल्लामा इब्न जौजी ने बयान किया कि अपनी किताब अल मौज़ूआत में इस हदीस को रखा है और कहा कि यह मन घड़त हदीस है, नबी से इसका कोई सबूत नहीं है, बगैर सर और बगैर पैर की हदीसें। इनको लेकर क्या है अहले बिदअतों में क्या है डूबे हुए, कोई सर और पैर इस हदीस का नहीं, घड़ी हुई हदीसें हैं, लोगों ने अपनी तरफ से क्या है घड़ ली हैं। आइए और देखिए हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, रावी हदीस बयान करते हैं, गालिबन अबू हुरैरा है या अली है, दोनों में से कोई एक है। क्या कहते हैं कि जब शाबान की 15वीं तारीख हो तो क़ुमुल लैल, तो तुम क्या है रात में इबादतें करो और उसके दिन में यानी इबादत करने के बाद दूसरे दिन में क्या करो तुम रोजा रखो। ऐसा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात क्या है सूरज गुरूब होने के बाद ही क्या है नुज़ूल फरमाता है समाई दुनिया, दुनियावी आसमान तक, और आने के बाद ये ऐलान करता है कोई है जो मुझसे क्या है रोजी मांगे मैं उनको रोजी दूं, कोई मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगे मैं उन्हें बख्श दूं, कोई अपनी बीमारी से शिफा मांगे मैं उनको शिफा दे दूं, कोई कुछ और मांगे मैं उन्हें दूं। इस तरह से क्या है ऐलान करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये हदीस भी अल्लामा इब्न जौजी ने क्या है अपनी किताब अल मौज़ूआत में रखा है। ये हदीस भी मन घड़त है, घड़ी हुई हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई सबूत नहीं है। तो ये चंद रिवायतें हैं जो क्या है इनको जो घड़ी हुई हदीसें हैं, मन घड़त हैं, इनको लेकर अहले बिदअत इस रात और इस दिन में क्या है इस तरह के काम को अंजाम देते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक सही हदीस जो मैंने अभी पहले आपको बतलाया शाबान की 15वीं तारीख की फजीलत के ताल्लुक से, लेकिन उसमें इबादत का कोई जिक्र नहीं मिलता है। और हर रोज समाए दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल फरमाता है, नुज़ूल होता है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, वो हर रोज नुज़ूल फरमाता है, सिर्फ शाबान के साथ खास नहीं है। हाँ, शाबान में भी आता है वो अलग बात है, लेकिन हर रोज
तीसरे पहर में, रात के तीसरे पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होता है, समय दुनिया तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आता है और ये ऐलान करता है कोई है बंदा जो मुझसे क्या है दुआ मांगे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, कोई है बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, मैं उन्हें बख्श दूं, कोई है बंदा जो मुझसे क्या है रोजी मांगे, मैं उन्हें रोजी दूं। ये ऐलान होता है, रोजाना का ये मामूल है। तो रोजाना बंदा क्या है रात के तीसरे पहर में उठकर इबादत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआएं को कबूल करेगा। लेकिन किसी एक रात को खास कर लेना, चाहे 15वीं शाबान को हो, चाहे जुमा की रात को हो, चाहे किसी और रात को हो, सिवाय लैलतुल कद्र के, लैलतुल कद्र को छोड़कर उनका मकाम है, मर्तबा है 1000 महीने से अफजल कुरान ने बतलाया और हदीस रसूल ने क्या है बतलाया, सिर्फ वो रात खुसूसी तौर पर इबादत करने के लिए है। बाकी कोई रात क्या है इस तरह से खुसूसी तौर पर इबादत करने के ताल्लुक से नबी से कोई सबूत नहीं मिलता, सहाबा से कोई सबूत नहीं मिलता है। ये जो कुछ भी शाबान के महीने में इसके ताल्लुक से हो रहा है ये बिदअतें हैं, शरीयत से हट कर है। इंसान को, लोगों को इनसे बचना चाहिए और जो सुन्नत मैंने इनके ताल्लुक से क्या है आपको बतलाया है, इस सुन्नत तरीका को अपनाना चाहिए। कोई अगर शाबान के महीने में क्या है नबी की सुन्नत को अपनाना चाहे तो 1 तारीख से लेकर 15वीं तारीख तक वो रोजा रखे, बस ये सुन्नत तरीका है। इनके अलावा बाकी और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इबादत आप जितना कीजिए, इबादत का सवाब तो आपको मिलेगा, लेकिन ये मखसूस करके आप इबादत करेंगे तो ऐसा सबूत नहीं है। 15वीं तारीख को लोग जाते हैं कब्रिस्तान में, शरागा करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फिर इस दिन क्या है हलवा पूरी वगैरह बनाते हैं, सब बेबुनियाद हैं। अपनी तरफ से लोगों ने क्या है घर कर ऐसा कर लिया है और कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या है हलवा पूरी क्या है हलवा बनाकर खाया था। दंदानी मुबारक शहीद हो गए थे, जालिमों ने क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी चीज क्या है मंसूब कर दी जो नबी ने क्या है क्या नहीं। नबी की दंदाने मुबारक तो सव्वाल के महीने में सन 2 हिजरी में जंग उहद में शहीद हुए थे, ना कि शाबान में। नबी दुखों में है, तकलीफ में है, करह रहे हैं, दांत शहीद हो चुके हैं और इन अहले बिदअतों को क्या है हलवा खाने में मजा आता है। अगर नबी की सुन्नत की पैरवी करनी थी इनको तो अपने दांत पहले तोड़ लेते। और नबी किस मिशन में निकले हुए थे, दांत टूटे थे, मालूम है काफिरों का मुकाबला था। इस्लाम को जड़ से उखाड़ने के लिए मक्का मुकर्रमा से क्या है 3000 का लश्कर जर्रार मदीना पहुंचे थे, 3000 का। उसके मुकाबले के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबाए किराम को लेकर निकले थे। उस जंग में जो जंग उहद के नाम से मशहूर है, नबी के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। इतनी तकलीफ में नबी हैं और इनको हलवा खाने को सूझी। नबी के नक्शे कदम पर चलना था तो मिशन लेकर निकलते, काफिरों से, दुश्मनाने इस्लाम से तुम्हारा मुकाबला होता, इस्लाम फैलाने के लिए तन मन धन को लगा देते, अपने दादों को शहीद करवा लेते, जिस्म को कटवा लेते, गर्दनें कटवा लेते। तो ये था नबी का तरीका, ना कि नबी दुखों में है तुम हलवा खाओ घर में बैठकर। ये तमाशा लोगों ने दीन को बना लिया है। फिर कब्रिस्तान में जाकर चरागा करते हैं, रोशनी क्या है बनाते हैं, कब्रों को, मुर्दों को, बहुत सारी चीजें और इसमें है। वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए क्या है इन सारी चीजों को अभी बयान नहीं किया जा सकता है। मुख्तसरन मैंने क्या है आपको बतलाया। ये जो क्या है उस दिन 15वीं तारीख को कब्रिस्तान जाना, चिरागा करना और मैयत के लिए खुसूसी दुआ करना, प्रोग्राम बनाकर जाना, ऐसा नबी से क्या है इसका सबूत नहीं मिलता है। ये सब क्या है बिदअत पर मबनी है और हलवा पूरी और जश्न क्या है इस दिन का मनाना ये गैर दुरुस्त है, इस्लामी कल्चर और तहजीब से क्या है हटकर है, नबी के तरीके से हटकर है, साहबा के तरीके से हटकर है। तो इस महीने में जो कुछ हमको करना था नबी की सुन्नत आपके सामने बयान कर दी गई है और जो खराबियां थी वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और अहादीस को और शरीयत को समझने की तौफीक इनायत फरमा और सही मानों में सही हदीसों पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। हम में से जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मगफिरत अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं ईमान की हालत में अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया में जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे और इस्लाम की सही समझ अता फरमा और मुकम्मल तौर पर इस्लाम पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे ईमान की ताज़गी अता फरमा और हर तरह की परेशानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको महफूज कर ले। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन व रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر